So now we are going to see is the rank of a matrix and what is the use of that rank. Okay, so before that, as we have introduced the matrix, and in matrix we have seen elementary operations. So elementary operations, interchanging two row, multiplication of a row by a non-zero number, and addition of a multiple of one row to the another. These are the three elementary operations. Okay. Now there is one definition as well, that when you apply the elementary operations and you obtain the new matrix, so it is called A is equivalent to B. Okay. A is equivalent to B. It is written like equivalent. So अगर आपसे ये पूछा है, this question also could be there, Ma'am, that yes, ma'am, some children are not able to view the screen. view the screen. Yes, ma'am, the book you're sharing. Okay, let me stop it and again share. Now is it visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, If ma'am. anybody is not able to see, then you need to tell me. So what we are doing that elementary operations करने के बाद जो आपका resultant matrix होता है, these two are called equivalent. So sometime the question may be like this, that whether these two matrices are equivalent. Now how they are equivalent? You need to see that from one matrix can we get the other matrix by using the elementary operations. So किसी भी स्टाइल से आप किसी भी मैट्रिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, वेदर स्टार्ट फ्रॉम ए और स्टार्ट फ्रॉम बी. सो ए और बी को जब आप देखोगे तो देखोगे बी में दो जीरो है स्टार्टिंग में, एक जीरो यहाँ पर है, तो कुछ जीरोस क्रिएट किए हुए हैं. सो व्हाट वी विल डू, हम ए से स्टार्ट करके यहाँ पे दो जीरो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उस प्रोसेस में ये भी जीरो अगर बन गया तो, एंड द एंट्रीज रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर सेम, then we'll say yes, these two are equivalent. So we started with A. We are applying few elementary operations which are but obvious, very obvious. So हमने ये operations लगाने के बाद देखा कि yes, अब इन दोनों को भी हम R2 से 0 बना सकते हैं, तो yes, we are getting same matrix as B, तो A and B are equivalent. So this is one application of row operations. That question may be like, may be asked like this, that whether the two matrices are equivalent. ठीक है, not only in your BSc first semester exam, but any of your competitive exam where this is a part, that whether these two matrices are in equivalent, nothing else will be given. So now you need to apply your logic, that yes, equivalent meaning by elementary operations can we get one matrix from the other matrix. Okay, then we can also convert the matrix into triangular matrix. How? Triangular matrix क्या होती है? एक ट्रायंगुलर पार्ट या तो ऊपर वाला या नीचे वाला जीरो होगा, अदर विल बी नॉन जीरो. ठीक है, सो एटलीस्ट वन जीरो होगा. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रखते हैं, मतलब नीचे वाली एंट्रीज जो हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, उन सबको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, देन इट इज कॉल्ड दी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो ट्रायंगुलर के लिए अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशंस. क्योंकि जीरो क्रिएट करना है तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम करते हैं. एटलीस्ट ये दो जीरो बनाते हैं, उसके बाद बाकी देखेंगे. तो अगर ये दो जीरो आपने बनाए, बस आपकी आ गई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, then the question may, in the question may not be specifically written that row operations, but if you have asked anything for a matrix, you have to apply the elementary operations, right? Your whole syllabus is about elementary operations. So this type of question also you can find out. Then you can convert the matrix into not only the triangular matrix but into the identity matrix as well. So this is one example of identity matrix.
Now these are few examples. Inverse के लिए what you need to do? If you are asked for the inverse of the matrix, for inverse of the matrix, you will write that for given any question, if B is its inverse, or don't need to write this ABCD as well. We'll do it another way. We'll not do this way, बट विल डू दिस वे. ठीक है, तो ए की मेथड, ए की तरीका याद रखो. इनवर्स के लिए क्या करना है आपको? ए इज इक्वल टू आई ए लिखना है. ये राइट हैंड साइड वाले ए को ए ही लिखना है. यहाँ पर आइडेंटिटी को ओपन करना है, और दिस साइड यू विल बी राइटिंग द ए मैट्रिक्स. नाउ यू ट्राई टू कन्वर्ट दिस ए मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशंस. और उस प्रोसेस में यहाँ पर जो भी आपके चेंज होंगे, क्योंकि जो ऑपरेशन आप यहाँ के लिए लगा रहे हो ना, जैसे आप बोल रहे हो कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3R1, सो वो ना सिर्फ यहाँ एप्लीकेबल होगा, यहाँ भी एप्लीकेबल होगा. तो इस प्रोसेस में जो आपका यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इस साइड द आइडेंटिटी विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए इनवर्स. ओके, you can do another way as well, that you can write A matrix is to बना के you can write identity matrix. So एक augmented matrix में भी आप लिख सकते हैं. अब जो काम आप A के लिए कर रहे हैं वो पूरी रो के लिए होगा, पूरी रो के लिए होगा, पूरी रो के लिए होगा. तो जब ये is to K इस साइड वाला, that is the A part converted to I, the I part will get converted into A inverse. So just a way to write this, just a moment, just a moment. Hello? Yes? Okay. So let's continue. So these are the two way of writing and finding the inverse. ठीक है? There are very less chance of such type of questions, but you should know such questions. Okay? So for that, and again all you have to do is that apply your elementary operations. So in all the questions, it is just of the one thing. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो इसको, इट इज बीइंग आस्क्ड सम टाइम इन द DU 2006 BSc exam. So this book will help you to find out some of the questions which are being asked in examination as well. Now this is the other way of writing the same thing. If you are comfortable in this, write this way. Otherwise, if you are comfortable only in the first way, then write in that way only. मतलब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये तरीका आसान लगता है, इसी तरीके से कंफर्टेबल हो, आप ऐसे कर लो. और साइमल्टेनियसली अगर आप ऐसे भी कर सकते हो तो दोनों तरीके से प्रैक्टिस करो. इनफैक्ट इस तरीके से प्रैक्टिस करो. दिस इज अ न्यू वे विच यू आर लर्निंग. काम सेम हो रहा है. ओके, सो ए इनवर्स में एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट, ये कैसे पता चलेगा? जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देख रहे हो ना, जब आप कन्वर्ट करने जाओगे इसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के, आपका ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, तभी तो इधर वाला पार्ट इनवर्स बनेगा. अब सपोज आपका कुछ ऐसे आ गया आंसर, that one of the row becomes 0. So now A cannot be converted into identity. A is not equivalent to identity, yes? If it is not equivalent to identity, then inverse cannot be find out. तो जब भी inverse का question आता है, if it's a 3/3 case and if it's possible to find out the determinant, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी हो, even if it is asked in your IS interview as well. Okay, so for meaning, if it is asked in any lowest level or highest level, if you can find out the determinant, first try to find out the determinant. If it is non-zero, you can say yes or no. Inverse exists or inverse does not exist. Then the next thing comes of finding the inverse. Okay, तो कहीं भी किसी भी लेवल पे कभी भी आपसे इनवर्स निकालने के लिए पूछा जाए, if possible find out the determinant and first
Give the answer in yes and no. Yes, inverse can be find out, inverse can not be find out. तो ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप इस क्वेश्चन में भी चेक कर लेते द डिटर्मिनेंट. ओके. So for any matrix, if you are asked for inverse, first find out the determinant. If determinant is 0, say no inverse exists. If determinant is non-zero, then only find out the inverse. फिर इनवर्स निकालने का जो तरीका आपको लगता है आसान उसको निकाल लो. At least your calculation will not go waste like this. So now there is one important concept which I want to introduce is the rank. Now what is the rank? Okay. If you talk in a crude sense or in a definition way, so the rank says that given a matrix, find out its determinant. Okay. If it's non-zero, then the determinant is the order. Okay. The rank is the order. ठीक है. So definition अगर आप देखते हो, rank is the order of the matrix having non-zero determinant. Okay. Order of the matrix having non-zero determinant. अब अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो फिर क्या होगा? तो उस केस में सपोज 3/3 मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 3. ऑल राइट. अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता तो क्या करते हैं हम? तो फिर रैंक को डिसाइड करने के लिए हम जाएंगे इसकी सब मैट्रिसेस पे. सब मैट्रिसेस क्या होती हैं? एक मैट्रिक्स में से कुछ कुछ पार्ट आप ले लेते हो, दैट इज कॉल्ड द सब मैट्रिक्स. तो यहाँ पर जैसे आपने 2/2 मैट्रिक्स यहाँ से बना सकते हो. कितनी 2/2 मैट्रिक्स बना सकते हो? बहुत सारी. 2/2 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट की बात करेंगे. ठीक है. तो वॉट एवर मैट्रिक्स इज गिवन टू यू, make out the square matrices from that, sum matrices from that, and find out the determinant. Okay. तो अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो पहली सब मैट्रिक्स वो सेम 3/3 की मैट्रिक्स हो गई. आपने डिटर्मिनेंट निकाला, नॉन जीरो आया तो रैंक बिकम्स 3. अगर जीरो आ गया तो क्या करोगे? दो देन यू विल मूव अहेड, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिसेस. अब अगर आपने सारी 2/2 मैट्रिक्स जितनी पॉसिबल है सबके सब बना ली, सबका डिटर्मिनेंट चेक किया, अगर किसी भी एक का नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ गया देन द रैंक विल बी व्हाट? 2. ओके. अगर सभी का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ऐसा भी हो सकता है ना कि सभी 2/2 मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, तब क्या करोगे? तब यू विल गो टू 1/1 केस. 1/1 में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो जीरो नॉन जीरो होगा आपका, सो रैंक इज एटलीस्ट 1 फॉर अ नॉन जीरो मैट्रिक्स. अगर सभी एंट्रीज जीरो है तब तो रैंक जीरो होगी, उसकी कोई रैंक नहीं निकालेंगे हम. सो रैंक इज एटलीस्ट 1 और आपको क्या निकालना है? हाईएस्ट सब मैट्रिक्स ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट. अंडरस्टूड? रैंक. दिस इज अ Yes, डेफिनेशन. ma'am. दिस इज अ डेफिनेशन. अब अगर आप सोचो 4/4 का आपको क्वेश्चन दे दिया लाइक दिस, 4/4 भी नहीं, 4/3 है. एनीवे इसमें हाईएस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगी? 3/3 ऑर्डर की. एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी. तो रोज को इधर उधर नहीं करना है, रोज को वैसे के वैसे ही रखना है, रो और कॉलम को ऊपर नीचे नहीं करना है. ठीक है. किसी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसको हटा के ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगी. सो 4/5 केस में आप सोचो कितनी सारी मैट्रिसेस बनेगी. सबका डिटर्मिनेंट निकालो आप. अगर नॉन जीरो आ गया तो एक ही बार में काम हो गया, बट अगर जीरो आ गया तो क्या करोगे? तो फिर निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, निकालते रहोगे. तो इसलिए वी हैव द रैंक definition alternatively coming from the echelon form. और इकेलॉन फॉर्म में क्या है? इकेलॉन फॉर्म के लिए पहले आपको कुछ कैलकुलेशन करके मैट्रिक्स को इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. देन द रैंक इज व्हाट? रैंक इज सिंपली द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इकेलॉन फॉर्म.
तो rank in one line is what? Number of non-zero rows. Number of non-zero rows. क्यों बोल रहे हैं हम नॉन जीरो रोज? क्योंकि जब हम इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि कोई रो पूरी पूरी जीरो आ जाए, और जो पूरे तरीके से जीरो आ जाती है उसको हम क्या करते हैं, सबसे नीचे ले जाते हैं ना। तो अब सपोज ये ऐसी ही मैट्रिक्स होती है, फाइनल हम कन्वर्ट वन्वर्ट करने के बाद में ये भी जीरो मान लो, जीरो जीरो होते, ये जीरो होता। अगर ये इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हमने कर लिया होता, ओनली इकेलॉन फॉर्म इज गुड इनफ। रिड्यूस रो में करोगे तो और अच्छी बात है, बट इकेलॉन इज ऑल्सो गुड इनफ। तो इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने देखा आप कितनी नॉन जीरो रोज है इसमें, तो नीचे की दो पूरी जीरो है, ऊपर की तीन नॉन जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाती? 3, सिंपली। ऑल राइट। तो रैंक निकालना सीखो अब से। आप जितने भी क्वेश्चंस करोगे फॉर द रैंक, फॉर एनीथिंग, एनी ऑपरेशन, यू कैन सिंपली फाइंड आउट द रैंक एज वेल। ओके। अब रैंक का क्या फायदा होगा और ये जो लिखा हुआ है इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप क्या करोगे, मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिड्यूस रो इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी रैंक की बात करोगे। तो ये एग्जांपल है आपके पास में, जैसे इसमें ऑपरेशंस लगाने के बाद here they get the non-zero rows are how many? 3, so rank is 3. Look at one more question. Here the reduced row echelon form is this. So what is the rank now in this question? The rank is 2 because the last row is 0. This will be very helpful in solving the system of equations as well. Okay, and commenting on that. So we'll continue that in the next class.